Hello dear students, welcome back, and today we will start a new topic of our class 12th third chapter, that is genomics and bioinformatics, and this topic deals with the bioinformatics parts, that is the information sources. Actually, the information source of the various databases is stored at a center which is named as NCBI. This NCBI is National Center for Biotechnology Information, which is a branch of National Institute of Health, was located was founded in the year 1988 and is located in Maryland, USA. NCBI houses a series of databases, means हमारे पास बहुत सारे जो databases important है बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिसिन से, that is stored here. It is a resource for various bioinformatics tools and services. It provides various data retrieval tools, means we can analyze the information, and the computational resources. So these are the benefits or the advantages of NCBI. Next, the major resources available. So in accordance to the class 12, this may be asked that what are the major resources available. So we have to write the 7 names of the various resources. One is database retrieval tool, another BLAST family, gene level sequences, chromosomal sequences, genome analysis, analysis of gene expression patterns, and the molecular structure. In our syllabus, these first 4 tools are in detail, while the last 3 are not in very much detail, the various resources. The next is the first resource, database retrieval tool. जब भी हम database retrieval tool की बात करते हैं तो retrieval tool is the process of identifying and extracting various data from various databases, and it depends on the query of an applicant. And the examples of the various databases, the first is ANTRAS, and this is important database. It is a database of the mole biology system, and various information of genome mapping 3D structure is available here. In normal words, we can say that ANTRAS is the database that give us the literature. यहाँ पर लिटरेचर का मतलब है वो सारा इंफॉर्मेशन जो किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस से, पर्टिकुलर डाटा से अवेलेबल होता है, इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट इज द टेक्सोनॉमी ब्राउजर. As the name clarifies, taxonomy browser is the database that provides us the information regarding the taxonomical classification of various species. यहाँ पर हमें हर स्पीशीज की जिसका डाटा स्टोर्ड है उसका टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन बहुत इजीली मिल जाता है. नेक्स्ट रिट्रीवल टूल इज द लोकस लिंक, एंड इट इज दैट database which provides us the information about the nomenclature of various databases or the genes which are provided in this database. It gives us the descriptive information about various genes, so we can easily assess the homologous gene from this. So we should know what are the homologous gene, which will be discussed in the later slides. The next is the second tool, and this is very important in accordance to class 12. Many times the question is asked from this topic, that is the BLAST family. The full form of the BLAST is Basic Local Alignment Search Tool. जैसे हमारे पास गूगल इंजन है जो हमें सर्च इंफॉर्मेशन देता है,
इसी तरह से जब हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात करते हैं, जो ब्लास्ट है दैट प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द सीक्वेंसेस ऑफ द डाटाबेसेस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरह का डेटाबेस है और किस तरह की इंफॉर्मेशन ये स्टोर करता है। इट इज एन एल्गोरिथम, कंप्यूटेशनल पार्ट है ये, which help us in determining the similarity between various biological sequences. Similarity से यहाँ पर हमारे पास मतलब है means we can find out the evolutionary relationship between two or more organisms, and to find the functional and evolutionary relationships between the different members of the same gene family or different gene family, a particular procedure or protocol is used to be used, and the principles of this are as follows. The first principle is, जब हम अपना कोई भी सीक्वेंस जिसे हमने आइडेंटिफाई करना है फीड करते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड वाइज इट मैचेस द सीक्वेंस, means there is a sequence ATGC, so it will find out how many of the genes which are stored in the database have A at the first sequence. तो उन सबको जिनके पास A फर्स्ट पोजीशन पे है उन सबको वो प्लस मार्क्स दे देगा, और जिनके पास A फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है उनको वो माइनस मार्क्स दे देगा। ऐसे ही सेकेंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितना बड़ा हमारा सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग वो मैच करता जाएगा, और जहां पर मैच होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव पॉइंट्स, एंड जहां पर सीक्वेंस मैच नहीं होगा वहां पर वो पेनलाइज कर देगा, पॉइंट्स काट देगा। तो जहां पर जितने ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे उसका क्या मतलब है कि हमारे पास वो सीक्वेंस उतनी ज्यादा उस पर्टिकुलर सीक्वेंस से मैच कर रही है। सो द टॉप स्कोरिंग मैचेस रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द सेट क्राइटेरिया, जो यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, और जितना सिमिलैरिटी मैच होगा उसकी हेल्प से एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप्स और the match is due to the random chance, it can be calculated. So true matches जो हमें मिले हैं उनको फर्दर एग्जामिन किया जाता है वेरियस डेटाबेसेस से। हमारे पास एंट्राइज जो हम अभी पढ़ चुके हैं उसमें लिटरेचर अवेलेबल है, वहां से क्रॉस टैली किया जाता है, और बहुत सारे डेटाबेसेस से हम इसको फर्दर एग्जामिन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द होमोलॉजी। Homology or homology, both words are used, and this deals with the relationship in terms of the biological information, and biological information deals with the DNA sequences or the RNA or the protein sequences. तो जब भी हम ancestral relationship की बात करते हैं और हमारे पास अगर evolutionary relationship है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर मैचेस होंगे, और मैचेस होने के साथ हमें पता चल जाएगा इसके अंदर इतनी होमोलॉगी है। एंड होमोलॉगी मे बी ऑफ फर्दर टू टाइप्स। दो रीजंस हो सकते हैं होमोलॉगी अचीवमेंट के, वन इज द ऑर्थोलॉग्स एंड अनदर इज द पैरालॉग्स। ऑर्थोलॉग्स वो होते हैं जब एक जीन किसी एंसेस्टर में था और जब उससे स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू एनी रीजन, और वो दो अलग अलग जीन्स बन गए, दो अलग अलग सीक्वेंसेस बन गई जिनका स्ट्रक्चर सेम है, जिनका फंक्शन भी सेम है, बट एग्जिस्टेंस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है क्योंकि स्पीशिएशन की वजह से हुए हैं। पैरालॉग्स वो होमोलोगस सीक्वेंसेस हैं जिनमें होमोलॉगी आई है ड्यू टू द डुप्लीकेशन। एक सीक्वेंस थी और वो उसी इंडिविजुअल में डुप्लीकेट हो गई, डबल हो गई, और इन द कोर्स वहां पर एक स्ट्रक्चर जीन का सेम रहा बट एक का फंक्शन अलग हो गया और दूसरे का फंक्शन अलग है। सो हम कह सकते हैं होमोलॉगी में सेम फंक्शंस होते हैं, सेम स्ट्रक्चर होता है, बट जो पैरालॉग्स की वजह से होमोलॉगी है उसमें स्ट्रक्चर सेम हो सकते हैं बट फंक्शन सेम स्ट्रक्चर होता है बट फंक्शन में वेरी, एंड दिस एग्जिस्ट ड्यू टू द डुप्लीकेशन. So this line is important.
Homologous genes is a gene inherited in two species by common ancestors, and they are, when the genes are similar, they have the same structure, but it is not every time necessary that they will be homologous. Structure सेम हो सकता है but 100% गारंटी नहीं है कि वो होमोलॉगी होंगे, बट अगर उनमें फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, तो वो होमोलॉगस है. The third resource is resources for gene level sequences. Means in this we will identify the particular gene of the organism from a particular database, and for this we have different databases. The first database is the UniGene. जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, UniGene एक NCBI का डेटाबेस है जो ट्रांसक्रिप्टोम पे बेस्ड है. ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है? जब डीएनए से आरएनए बनता है, दैट होल अमाउंट, आरएनए क्या है? ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो कंटेंट अवेलेबल है और उसका कंप्लीट अवेलेबिलिटी इज ट्रांसक्रिप्टोम, प्रोटियोम, जीनोम एंड ट्रांसक्रिप्टोम. And this UniGene is the database which is used to manage redundancy. What is redundancy? It is the repetition. कई बार हमारे पास एक ही डेटाबेस में एक ही जीन के बहुत सारे सीक्वेंसेस अगर स्टोर होंगे तो वो डेटाबेस बड़ा हो जाएगा और एनालाइज करना, स्टडी करना भी थोड़ा टफ रहता है. तो इसीलिए EST कहाँ से बनते हैं? हमेशा एक्सप्रेस टैग से बनते हैं. ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में. ESTs एक्सप्रेस टैग्स की सीक्वेंसेस होती है और एक्सप्रेस पार्ट क्या है? आरएनए है. तो आरएनए का जो एक्सप्रेस पार्ट है उसका जो डेटाबेस है, उसकी सीक्वेंसेस को जब हम मैनेज करते हैं तो उस डेटाबेस का नाम है हमारे पास यूनिजीन. नेक्स्ट इज द होमोलोजीन. होमोलोजीन नाम से ही पता चल रहा है, जो हमें होमोलोगस सिस्टम, होमोलोगस इंफॉर्मेशन देता है बिटवीन डिफरेंट databases. RefSeq is the reference sequence. Full form is the reference sequence, and it is a database which gives us the information about all the biological databases, biological information, and this information is further utilized to prepare the chips. जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं, माइक्रो एरे में यूज कर सकते हैं, फिश में यूज कर सकते हैं. And next word is the curator. Actually curator is a post. ये एक पर्सन हो सकता है, ये कंप्यूटर मीन्स इट इज अ प्रोसेस. बेसिकली यहाँ पर एक प्रोसेस होता है. जब भी हम कोई डाटा अपना स्टोर करते हैं, उस डाटा को सबमिट करने के लिए, स्टोर करने के लिए एक हमें पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है. जैसे हम लोग केमिस्ट्री में IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉलो करते हैं, उस तरह का नॉमेनक्लेचर हमें यहाँ फॉलो करना पड़ता है कि हमारे डीएनए की सीक्वेंस अगर सबमिट हो रही है तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हो, आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही स्टोर हो. जब प्रोटीन स्टोर हो तो वो अमाइनो टू कार्बोक्सिल टर्मिनल में स्टोर हो. इंफॉर्मेशन मिथ्योनिन के लिए ऑलवेज M कोड ही यूज हो. तो ये सब इंफॉर्मेशन प्रॉपर है या नहीं, इसको चेक जिस प्रोसेस से किया जाता है उस प्रोसेस को क्यूरेशन बोला जाता है. एंड द पर्सन हु डू दिस इज नोन एज द क्यूरेटर. अदर इंफॉर्मेशन डेटाबेसेस जो हमारे पास अवेलेबल है, फर्स्ट इज EMBL, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब. इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स पे सीक्वेंसेस अवेलेबल है. नेक्स्ट इज यूनिप्रोट के. यहाँ पर इस टेबल में 3 ऐसे डेटाबेसेस है जो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, बट प्रोटीन में भी बहुत स्पेसिफिक है. यूनिप्रोट हमें एनोटेटेड प्रोटीन सीक्वेंस देता है. एनोटेटेड होता है जिसको हम लोग पूरी तरह से स्टडी कर चुके हैं, जिसका फंक्शन हमें पता है, उसका ईच रीजन हम स्पेसिफाई कर चुके हैं. दैट इज द एनोटेटेड प्रोटीन सीक्वेंस. PDB अगेन इज ए डेटाबेस जो 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे काम करता है, इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है. राइबोसोमल RNA डेटाबेस नाम से ही पता चलता है, जिसमें rRNA की सीक्वेंसेस अवेलेबल है. पैली डेटाबेस
The full form is phylogenetic analysis and alignment of protein. जो हमें phylogenetic analysis means evolution analysis में help करता है, that is PALI database. Next is the topic. When we say that the bioinformatics is very important for us, it gives various information, various data to us, and we can compare that data also. So the last topic of this chapter is how we can analyze the different information using these bioinformatics tools. Means when we are working with the computational technologies, we can process the raw information. We may know about the various new genes. We came to know about the various proteins. The regulatory sequences can be searched over. We can study the ancestral relationship, that is the phylogenetic relationship. And finally, while using all the tools and the databases, we came to a conclusion. We came to the function, we came to know that particular gene is having this particular function. We will know about the function, and finally we will make a discovery. So this is all about the various information sources. The question according to this topic, जो ये लास्ट हमने पढ़ा है आपकी बुक में, जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ चैप्टर 4, दैट इज जीनोमिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, उसमें जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये टॉपिक वहाँ कवर हो जाता है, आंसर वहाँ पर इसका लिखना है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. इफ यू हैव एनी क्यूरी देन आस्क, आई विल आंसर. थैंक यू.